آپ ریاست پاکستان کے ملازم ہیں، آپ ریاست پاکستان کے پبلک سرونٹ ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے نام کے ساتھ جو قاضی کا لفظ لگا ہے یہ چھوٹا لفظ نہیں ہے۔ خواجہ آصف کو سیالکوٹ میں نے بری طرح شکست دی، نون لیگ کا میں نے صفایا کیا۔ محترمہ ریحانہ ڈار صاحبہ، آج بالآخر ریٹرننگ آفیسر NA-71 نے اپنی رپورٹ سبمٹ کی ہے، اور میں اس رپورٹ کی جانب جانے سے پہلے آپ کے توسط سے RO کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ریٹرننگ آفیسر صاحب، آپ ریاست پاکستان کے ملازم ہیں، آپ ریاست پاکستان کے پبلک سرونٹ ہیں، آپ خواجہ محمد آصف صاحب کے سرونٹ نہیں ہیں، یا آپ خواجہ محمد آصف صاحب کے ملازم نہیں ہیں کہ ان کی ہدایت پہ، ان کے کہنے کے مطابق آپ رپورٹ سبمٹ کریں۔ آپ نے اپنا فرائض جو آپ نے اس ریاست پاکستان کے ملازم ہونے پر جو حلف لیا ہوا ہے اس کے مطابق آپ نے اپنے فرائض منصبی انجام دینے تھے۔ اس رپورٹ کی میں کیا بات کروں؟ اس رپورٹ میں فارم 48، مبینہ فارم 48 کی بنیاد پر یہ رپورٹ فائل کی گئی ہے۔ وہ فارم 48 جو کہ ریٹرننگ آفیسر نے محترمہ ریحانہ ڈار صاحبہ کے مخالف کینڈیڈیٹ کے شاید گھر بیٹھ کے مرتب کیا ہے۔ اس رپورٹ میں ریٹرننگ کینڈیڈیٹ لکھتا ہے، میں اس کا ایک ہی پیراگراف آپ کے سامنے صرف گوش گزار کر دوں۔ وہ لکھتا ہے کہ تمام کنسالیڈیشن پروسیڈنگ بیفور ریٹرننگ آفیسر ریحانہ ڈار صاحبہ کی موجودگی اور الیکشن ایجنٹ کی موجودگی میں کی گئی۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، محترمہ ریحانہ ڈار صاحبہ ایٹ دیٹ ٹائم 8 فروری کو ایٹ دا ٹائم آف کنسالیڈیشن پروسیڈنگ وہاں چلا کے اپنے حق کے لیے بذریعہ آپ کی وساطت سے آپ کے روبرو یہ چلا رہی تھیں کہ نہ مجھے اور نہ ہی میرے الیکشن ایجنٹ کو کنسالیڈیشن پروسیڈنگ میں شامل کیا جا رہا ہے، جو کہ آپ کے پاس یہ ریکارڈ واضح موجود ہے۔ اس سے بھونڈا مذاق، اس رپورٹ سے زیادہ بھونڈا مذاق RO ہمارے ساتھ کیا کر سکتا تھا؟ اور آن دا ڈائریکشن آف مائی کلائنٹ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کیا خوبصورت بات ہے، کیا خوبصورت NA-71 جس کا سابقہ حلقہ میں اس ٹائم نہیں بتانا، یہ اب NA-71 ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے کہ مخالف امیدوار محترم جناب خواجہ محمد آصف صاحب کبھی بھی اس الیکشن، اس سے پچھلے الیکشن، 2013 کے الیکشن، 2018 کے الیکشن اور اب 2024 کے الیکشن، کبھی بھی الیکشن کی رات نہیں جیتے۔ وہ ہمیشہ جیتے ہیں الیکشن کی رات گزرنے کے بعد اس سے اگلے دن۔ کیسی خوبصورت بات ہے کہ 2013 میں بھی یہی کیا، 2018 میں بھی یہی کیا اور اب 2024 میں بھی یہی کر رہے ہیں۔ اور ان کے ٹول کون بنتے ہیں؟ یہ رپورٹ پیش کرنے والے اس قسم کے RO، اس قسم کے RO جو اس طرح کی رپورٹیں آنریبل کمیشن میں پیش کر رہے ہیں۔ میں آپ کی وساطت سے being a student of law and counsel of my client, آنریبل چیف جسٹس صاحب سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، محترم چیف جسٹس صاحب، آدھا پاکستان، آدھے سے زائد پاکستان روز پاکستان کے کرۂ ارض سے کدھر سے انصاف کے حصول کے لیے آپ کے بالمقابل
ऑनरेबल कमीशन में पेश होता है, ऑनरेबल कमीशन में हाजिर होता है। यहां पे अपने अवाम की मैंडेट की प्रोटेक्शन के लिए वो यहां पे आते हैं। ऑनरेबल मोहतरमा रेहाना डार साहिबा, मैं भी यहां पे एडवोकेसी कर सकता था, मेरे दोस्त सीनियर कौंसल ताहिर सुल्तान साहब भी कर सकते थे, हमारे ऑनरेबल कौंसल शहजाद शौकत साहब भी कर सकते थे, लेकिन सिर्फ मोहतरमा रेहाना डार साहिबा अवाम के मैंडेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, NA 71 के मैंडेट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑनरेबल कमीशन में हर तारीख पे बजाते खुद आती हैं। यही सूरत हाल जितने यहां पे लोग इंसाफ के हसूल के लिए आते हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, आप यहां पे मुलाहिजा करते हैं, आप रोज देखते हैं। मैं ये समझता हूं, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं ये समझता हूं कि रियासत पाकिस्तान और ये पाकिस्तान एक आइन की बुनियाद पर अपने तमाम फराइज सर अंजाम दे रहा है, एक आइन की बुनियाद पे, कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पे, और एंड यू आर द कस्टोडियन ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं आज यहां पे खड़ा हूं बीइंग अ कौंसल, तो मैं इसलिए खड़ा हूं कि मैं अपनी क्लाइंट के राइट प्रोटेक्ट कर सकूं। मेरी हम्बल सबमिशन ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब आपसे ये है, और मैं यहां पे तारीख का वो दौर भी दोहराता चलूं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, आपके वालिद मोहतरम काजी ईसा साहब वो शख्स हैं, मैं आपके वसातत से उन तक ये अपना पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। वो शख्स हैं जिन्होंने इस मुल्क के पाकिस्तान के बनने में अपना वाइटल रोल अदा किया, और एट द टाइम ऑफ इन लाहौर रेजोल्यूशन रिगार्डिंग बलोचिस्तान इन 1940, आपके वालिद साहब ने उसमें भी अहम किरदार अदा किया। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, मैं ये समझता हूं, मैं ये बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ और एज एन एडवोकेट, मैं ये समझता हूं कि आपके नाम के साथ जो काजी का लफ्ज लगा है, ये छोटा लफ्ज नहीं है। और मैं ये भी समझता हूं कि बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के हर शहरी का ये हक है, कि आप जिस मनसब पर बैठे हैं, आप जिस मनसब पर बराजमा हैं, आपसे इंसाफ की तवक्को रखे, आपसे इंसाफ की वो तवक्कुआत रखे जो मोहतरमा रेहाना डार साहिबा को भी हैं और जो मुझे भी हैं। मैं ये समझता हूं कि आपके तमाम मतहत इंसाफ की फराहमी करने वाले, इंसाफ प्रोवाइड करने वाले, इंसाफ देने वाले जितने भी यहां पे मतहत आपके अफसरान हैं, जितने भी जुडिशल ऑफिसर्स हैं, उनको आपने ही डायरेक्शन पास करनी है, आपने ही हमारा आइन के कस्टोडियन होते हुए उनको डायरेक्शन पास करके इस इंसाफ के हसूल को अपराइट करना है, इस इंसाफ के हसूल को उस मेयार पे लेके आना है जो एक काजी का फर्ज है। और मैं एट द एंड ये कहता हूं कि मोहतरमा रेहाना डार साहिबा के मुखालिफ हरीफ यहां से या जिधर भी, हम यहां से लेके इस रोड से बिलमुकाबिल सुप्रीम कोर्ट तक इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट तक, यहां से लेके सुप्रीम कोर्ट तक इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, और हम इनका हर मुहाज पे मुहासबा भी करेंगे और हर मुहाज पे अपने अवाम बिलखसूस NA 71 के मैंडेट को प्रोटेक्ट भी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीफ जस्टिस पाकिस्तान, दूसरे जो भी इदारे हैं इंसाफ देने के लिए, एक बेवा माँ की अपील है कि मेरा जहाद था, मैं सियासत में नहीं थी, मैंने जहाद किया और ख्वाजा आसिफ का जुल्म के खिलाफ मुकाबला किया। शहर सियालकोट के बहादुर नौजवान, बहादुर बेटियां, माओ बहनों ने मेरा साथ दिया। कतरा कतरा से दरिया बना और 90% वोट मेरा था, 10% ख्वाजा आसिफ था।
तमाम सहाफ़ी जानते हैं, तमाम चैनल मीडिया वाले जानते हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी सियालकोट में आया, उन्होंने भी मेरे साथ सर्वे किया, उनको भी पता है कि मैं जीत चुकी हूँ और जीत मेरी थी। मेरी सिर्फ एक ही अपील है कि आप नबी की उम्मत हैं, नबी की उम्मत, और एक बेवा माँ भी नबी की उम्मती है। जब ख्वाजा आसफ ने टीवी पर आके कहा कि आपने रिहाना डार के असली 45 फॉर्म देखे हैं, मैंने शहर सियालकोट के तमाम मीडिया को बुला लिया। सुने आप भी इंसाफ देने वाले, सारे असली 45 फॉर्म सियालकोट के मीडिया के सामने मैंने रखे। 350 45 फॉर्म असली ख्वाजा आसफ को सियालकोट में मैंने बुरी तरह शिकस्त दी। नून लीग का मैंने सफाया किया और वो 45 फॉर्म पर मैंने उस कुरान को जिसके मैं साहब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाद किया था, उसी पर मेरा भी जहाद था। लोगों ने माँ के अजीम रिश्ते को समझकर मुझे कामयाबी दी और इमरान खान का वोट था शहर सियालकोट में। अवाम शहर सियालकोट की मोहब्बत करती है इमरान खान से। मेरा जहाद था और जहाद में मुझे कामयाबी हुई और उस 45 फॉर्म पर मैंने कुरान रखकर, सुन ले इंसाफ देने वाले, उसी किताब पर जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे उम्मती पर उतारी गई थी, आपको भी इल्म होगा। मेरा यकीन है कि उस कुरान के असाब से, उस कुरान पर हाथ रखने से इंशाअल्लाह ताला मैं इंसाफ की उम्मीदवार हूँ। उससे बढ़कर कोई हस्ती नहीं। मैंने आप पर छोड़ा है फैसला और उस कुरान पर छोड़ा है जिस पर मैं जहाद के लिए निकली और अवाम में मुझे कामयाबी दी। भारी अक्सरियत से ख्वाजा आसफ फिरौन को शहर सियालकोट में शिकस्त हुई। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। आपके तहफ़्फ़ुज़ से मैं बताना चाहती हूँ, शहर सियालकोट में गली मोहल्ले में ख्वाजा आसफ चोर चोर के नारे लग रहे हैं और वो अवाम जिन्होंने मुझे वोट दिया, शहर सियालकोट में पेपर लगाए गए हैं, ख्वाजा आसफ वोट चोर। मैं इंसाफ देने के लिए कहती हूँ, जाएं आप भी सर्वे करके देख लें। मैं चैलेंज करती हूँ ख्वाजा आसफ को, आए दोबारा इलेक्शन लड़के देख लें, इससे भी ज्यादा मेरी लीड होगी। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि एक माँ की अपील है आपसे, इंसाफ देने वालों के, बुला लो उन लोगों को भी, वो भी कुरान पे हाथ रखें। मैं आज भी अदालत में कुरान पे हाथ रखने के लिए तैयार हूँ कि मेरे पास असली 45 फॉर्म है और मैं अपने नबी की जो उम्मत को पैगाम दिया, वो नबी की उम्मत है, वो कुरान को और मेरे कुरान पर हाथ रखे को फैसला देकर मुझे फैसला दे, नहीं तो दूसरी पार्टी को भी बुला ले। अगर वो भी कुरान पे हाथ रख दे तो झूठ सच का फैसला तो ऊपर होगा। मैं अपनी जीत ख्वाजा आसफ को दे लेके आए 45 फॉर्म।